Welcome student in second session from your textbook chapter number 9 heredity and evolution. We will continue this chapter. In last session we studied about the heredity, transmission of character from parents to their offspring, variation, accumulation of variation and advantages of variation, chromosomes, genes, dominant gene and recessive gene, genotype and phenotype, F1 generation and F2 generation. So today we are going to discuss about the rules for the inheritance of traits, that Mendel's contributions, monohybrid inheritance and the law of segregation, dihybrid inheritance and the law of independent assortment. So first, rules for the inheritance of traits, Mendel's contributions. Inheritance is the transmission of a genetically controlled characteristic from one generation to the next. How Mendel studied the inheritance of characters or traits in various generations of pea plants cultivated by him. Okay, first we will discuss monohybrid inheritance and later we discuss dihybrid inheritance. So first, monohybrid inheritance or the law of segregation. Okay, mono means one. In that previous session you studied about that monohybrid inheritance. Monohybrid means that one contrast character we should to take in experiment, so that is called the monohybrid. Okay, so in order to trace the inheritance of a single pair of contrasting characteristic among the pea plant like tall stem and short stem, Mendel crossed the pure breed pea plant differing in these traits and noted their occurrence in the progeny of succeeding generation. Progeny means that offspring. Mendel first crossed pure breed tall pea plant with pure breed dwarf pea plants. Look at here. Okay, this is means pure breed of tall pea plant and pure breed of dwarf pea plant. Okay, so that cross in between that and found that only tall pea plants were produced in the F1 generation. Means जब टॉल प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस ब्रीडिंग में मैंडल ने पाया कि जो फर्स्ट जनरेशन उसमें सभी जो प्लांट है वो कैसे हुए, टॉल हुए. लुक देयर, ऑल टॉल प्लांट्स. ओके, नो डॉर्फ पी प्लांट, मतलब कोई भी प्लांट डॉर्फ नहीं था, मीन्स शॉर्ट स्टेम नहीं था उसका. ओके, टॉल एंड डॉर्फ मीन्स कैपिटल टीटी एंड दैट इज स्मॉल टीटी मीन्स दैट पेरेंटल जनरेशन. इसको क्या कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन. और जब इनको क्रॉस कराने के बाद में जो प्रोगेनी फाउंड होते हैं दैट इज कॉल्ड द F1 जनरेशन. तो मैंडल ने इसमें क्या पाया कि सभी टॉल प्लांट्स है. ओके, ऑल प्लांट्स टॉल, ऑल टॉल प्लांट्स, नो डॉर्फ पी प्लांट्स आर देयर. फ्रॉम दिस मैंडल कंक्लूड दैट द फर्स्ट जनरेशन F1 shows the trait of only one of the parent plants, tallness. Okay, means trait of other parent plant dwarfness did not show up in the progeny of first generation. Means पेरेंटल जनरेशन में जब क्रॉस करा तो एक टॉल प्लांट था और एक डॉर्फ प्लांट था. बट आफ्टर क्रॉस ब्रीडिंग, ओके, दैट इन F1 जनरेशन जो प्रोगेनी फाउंड हुए, तो जितने भी जो प्रोगेनी थे वो सब कैसे थे, टॉल थे. मतलब एक ही पेरेंट का कैरेक्टर उसमें शो हुआ. ओके, मीन्स डॉर्फनेस उसमें शो नहीं हुआ. और आप इसमें देखोगे टी टी मीन्स जो प्रोग्रेनी है वो कैसे, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. मीन्स सभी में कैपिटल टी है और स्मॉल टी भी है. बट मीन्स दैट पेरेंटल जो टॉल जो पी प्लांट है वो ही इसमें F1 जनरेशन में शो हुआ. Clear this one? Mendel then crossed the tall pea plant of the F1 generation. Means इसके tall जो pea plant है अब इनको लेके क्रॉस किया मैंडल. ओके, एंड फाउंड दैट टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स वेयर ऑप्टेन. फिर जब ये जो F1 जनरेशन है, ओके, F1 जनरेशन में से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, जब इन दोनों का F1 जनरेशन की जो प्रोग्रेनी थे उनको लेके जब क्रॉस कराया मैंडल ने, after the cross breeding Mendel found that tall and dwarf, okay, plants were obtained. Means tall plant भी obtained हुआ और dwarf plant भी obtained हुआ in F2 generation. In F2 generation, तो इसे कौन सी जनरेशन कहते हैं, F2. in the ratio of 3:1, मतलब कि 3:1 में फाउंड हुआ. अब यहाँ पे आप देखो कैपिटल टी मीन्स दोनों कैपिटल टी, इट मीन्स दैट टॉल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कैपिटल टी है मतलब कि टॉल, तो ये टॉल प्लांट होगा. अब
कैपिटल टी एन स्मॉल टी मीन्स दैट टॉल प्लांट, तो ये भी टॉल प्लांट है। कैपिटल टी एन स्मॉल टी, तो ये भी टॉल प्लांट है। और यहाँ पे है डबल स्मॉल टी मीन्स दैट डॉर्फनेस, तो ये जो प्लांट है वो कैसा है, डॉर्फ है। क्लियर दिस वन? इन अदर वर्ड्स, इन द F2 जनरेशन 3/4 प्लांट्स वेयर टॉल एंड 1/4 वेयर डॉर्फ। ओके, मैंडल ने ये फाउंड किया था कि F1 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट शो नहीं हुआ था। जब सेकेंड जो F2 जनरेशन थी उसमें डॉर्फनेस शो हो गई। मैंडल नोटेड दैट द डॉर्फ ट्रेट ऑफ द पेरेंट पी प्लांट which had seemingly disappeared in the first generation progeny reappeared in the second generation. फर्स्ट जनरेशन में डिसअपियर हो गया था डॉर्फनेस और सेकेंड जनरेशन में रीअपियर हो गया। So Mendel said that the trait of dwarfness of one of the parent pea plant had not been lost. It was merely suppressed in the first generation. Re-emerged in the second generation. Mendel called the repressed trait of dwarfness or recessive trait and the expressed trait of tallness as the dominant trait. Means after parental को जब क्रॉस करा के जो कैरेक्टर शो होता है F1 जनरेशन में उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। ओके, जो अपियर हो रहा है मीन्स जैसे इसमें टॉलनेस अपियर हुई थी तो टॉलनेस क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया। ओके, फर्स्ट जनरेशन में डिसअपियर था और सेकेंड जनरेशन में रीअपियर होता है दैट पेरेंटल कैरेक्टर, सो दैट इज कॉल्ड द रेसेसिव ट्रेट। ओके, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में डॉर्फनेस नहीं था और सेकेंड जनरेशन में रीअपियर हो गया। क्लियर दिस वन? सो दैट इज कॉल्ड द रेसेसिव ट्रेट। In this way, Mendel's experiment with tall and dwarf plants shows that the trait may be dominant, recessive भी होते। Clear this one? The ratio 3:1 is known as the monohybrid ratio. तो इसे क्या कहते हैं, monohybrid ratio. The results of monohybrid cross enabled Mendel to formulate his first law of inheritance, which is called the law of segregation. According to Mendel's first law of inheritance, the characteristic of an organism are determined by internal factor. जो characteristic रहती है organism में वो किसके थ्रू डिटरमाइन होती है, internal factor. Okay, which occur in pairs. Only one of a pair of such factors can be present in a single gamete. Explanation in result of monohybrid inheritance. Mendel said that each trait is determined by a pair of factors. This means that purebred tall pea plant has two factors, T and T. For the trait of tallness, and the purebred dwarf pea plant also has two factors, means small tt, means for the trait of dwarfness, factors of inheritance of tallness tt separate into two gametes. Two gametes में separate हो गए। Clear this one? These are separate in two gametes, and the factor for inheritance of dwarfness T is separate into two other gametes T and T. The trait of transmitted to progeny through this gamete. These gamete of tall pea plant then cross with the gamete of dwarf pea plant. अब टॉल प्लांट के जो गैमेट है उनको डॉर्फ प्लांट के गैमेट से क्रॉस कराया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्रॉसिंग कराया जाता है टू फॉर्म जाइगोट विच देन प्रोड्यूस वेरियस प्रोग्रेनी। अब इसमें वेरियस प्रोग्रेनी प्रोड्यूस हो गए इन द F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल टॉल प्लांट्स। तो ये फर्स्ट जनरेशन में सभी कैसे टॉल है। Thus, the F1 generation possesses one factor of inheritance from each parent plant which were carried in gametes. तो इसमें पेरेंटल का कैरेक्टर है जो ट्रांसफर हुआ है गैमेट के थ्रू, तो जो प्रोग्रेनी है उसमें वो कैरेक्टर शो होता है, मीन्स टॉलनेस। ओके, पेरेंटल क्रॉस इसमें क्लियरली शो किया गया है। When two hybrid tall pea plant, ओके, ये हाइब्रिड प्लांट हो गए, टू पी प्लांट टी हो गया, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सो प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट प्रोड्यूस हुआ है अब उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। आर नाउ क्रॉस ब्रीड विथ ईच अदर देन दे विल प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन F2 पी प्लांट। फिर ये जब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है। ओके, दिस अगेन हैपन्स बाय द सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें सेपरेशन होता है फैक्टर्स का, कैपिटल टी एन स्मॉल टी, कैपिटल टी एन स्मॉल टी, ये सेपरेशन हो गया फैक्टर का, तो ये क्या बन गए, गैमेट हो गए। ओके, जब ये साथ में तो ये क्या थे, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। जब फैक्टर का सेपरेशन होता है तो ये गैमेट फॉर्म कर देते हैं। क्लियर दिस वन? ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दीज टॉल प्लांट्स इनटू इंडिविजुअल गैमेट, तो इंडिविजुअल गैमेट फॉर्म हो गए। ओके,
एंड देन क्रॉसिंग ऑफ द गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. गैमेट्स का क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी मीन्स टॉल प्लांट होगा. ओके, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी इट मीन्स दैट शोज द डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब कि टॉल प्लांट होगा. नाउ स्मॉल टी क्रॉस विथ small t, then dwarfness, because both factor small t means that dwarfness. Okay, we can see from the chart in the F2 generation the pea plant produce have genotype inheritance factor double capital T and small t, capital T and small t, and double small t. So now the plants having genotype double capital T and small t, capital T and small t all contain the factor T. मीन्स इसमें तीनों में कौन सा फैक्टर है? कैपिटल टी. ओके, फॉर डोमिनेंट ट्रेट मीन्स टॉलनेस. सो ऑल द थ्री प्लांट्स आर व्हाट? टॉल. द प्लांट्स हैविंग द जीनोटाइप इज डबल स्मॉल टी. ओके, फॉर द रेसेसिव ट्रेट डॉर्फनेस, सो इट इज अ डॉर्फ प्लांट. सो नाउ रिमेंबर दैट अ सिंगल कॉपी ऑफ फैक्टर कैपिटल टी इज इनफ टू मेक ए प्लांट टॉल. ओके, मीन्स इसमें एक भी अगर कैपिटल टी है तो वो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा. बट बोथ कॉपीज ऑफ फैक्टर टी दैट इज डबल टी, ओके, आर नेसेसरी टू मेक ए प्लांट डॉर्फ और शॉर्ट. In the F2 generation we get 3 tall plants and 1 dwarf plant. So the phenotypic ratio in the monohybrid cross will be tall plants 3 ratio dwarf plant 1. Clear this one? Dihybrid inheritance and the law of independent assurement. Di means 2, means इसमें 2 contrasting character use करते हैं. Okay, so dihybrid inheritance involve the inheritance of 2 pairs of contrasting characteristic. Okay, at the same time the 2 pairs of contrasting characteristics chosen by Mendel were shape and color of sheet. तो इसमें 2 characters क्या लिए गए थे? Shape and color of sheet. Round yellow seed and wrinkle green seed. Okay, this in order to trace the inheritance of 2 pairs of contrasting trait, Mendel crossed pea plant having round yellow seed, the pea plant having wrinkle green seed, and noted their occurrence in the succeeding generation of pea plants. Mendel made the following observation. तो Mendel ने क्या observation found किए? Mendel first crossed pure breed pea plant having round yellow seed with pure breed pea plant having wrinkled green seeds, and found that only round yellow seed were produced in F1 generation. Means जो F1 generation थे उसमें सभी में कैसे seed produce हुए? Round yellow seed. No wrinkle green seeds are produced. Clear this one? From this it was concluded that round shape and yellow color of the seed were dominant trait over the wrinkle shape and green color of seeds. जो कैरेक्टर अपियर होता है इन फर्स्ट जनरेशन में, सो दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट. तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या ट्रेट अपियर हुआ? राउंड येलो सीड्स ओवर द wrinkle green seeds. When F1 generation pea plant having round yellow seeds were cross bred by self pollination, और फिर सेल्फ pollination के थ्रू क्रॉस हुए राउंड येलो सीड, then 4 types of seeds having different combination of shape and color were obtained in second generation. फिर जो F1 जनरेशन के थ्रू जो राउंड येलो सीड फाउंड हुए सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू जब क्रॉस हुआ तो 4 types of seeds are produced. Okay, having different combination of shape and color. Okay, and that obtained in the second generation. So these were round yellow, round green, wrinkle yellow and wrinkle green seeds. Okay, Mendel collected a total of 556 F2 seeds and counted them shape wise and color wise. He got the following result. Round yellow seeds 315, round green seeds 108, wrinkled yellow seeds 101, wrinkled green seeds 32. The phenotypic ratio of different types of seeds can be written as 9:3:3:1. Okay, so thus the ratio of each phenotype of the seeds in the F2 generation is 9. Means 9 जो थे वो राउंड येलो सीड्स थे,
3 जो थे वो राउंड ग्रीन सीड्स से, और ये जो 3 है वो रिंकल येलो सीड्स से, और जो ये 1 है वो रिंकल ग्रीन सीड्स से. Clear this one? Result of dihybrid cross enabled Mendel to formulated his second law of inheritance, which is called the law of independent assortment. Okay. According to Mendel's second law of inheritance, in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factor responsible for each pair of the trait are distributed independently to the gametes. Now, explanation of result of dihybrid inheritance. In the dihybrid cross, the parent plant having the phenotype round yellow seeds having the factor of inheritance or gene combination capital R and capital Y. Okay, in which R are the dominant genes for the round shape, whereas the YY, capital YY are the dominant genes for yellow color. Okay. On the other hand, the parent plants having the phenotype wrinkled green seeds, okay, wrinkled green seeds have the factor of inheritance of gene combination small rr and small yy, in which small rr are the recessive genes for wrinkled shape. तो जो RR है वो wrinkled shape के लिए, okay. Small y are the recessive genes for green color. जो small y है किसको शो कर रहा है? Green color. Keeping this point in mind, we can now show the dihybrid cross by drawing a chart as we dihybrid cross between pea plant having round yellow seeds and wrinkled green seeds. Okay. तो इसमें जब पेरेंटल क्रॉस कराया गया, पेरेंट्स फिनोटाइप्स क्या है? प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स एंड प्लांट्स हैविंग रिंकल ग्रीन सीड्स. अब इसमें से जो फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस प्रोड्यूस हुए कैपिटल आर आर एंड कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर एंड दैट स्मॉल वाई. अब इनके मीन्स गैमेट प्रोड्यूस हुए कैपिटल आर और वाई के थ्रू. आर वाई गैमेट प्रोड्यूस हुआ, फैक्टर आर ने फैक्टर वाई से क्रॉस करा तो आर वाई. ओके, तो इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस हुए. अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अब ये गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो ये आर वाई कैपिटल आर वाई फ्यूज विद स्मॉल आर वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो ये मीन्स क्या हुआ? फ्यूजन के थ्रू ये जाइगोट फॉर्म हो गया. ओके, सो F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप प्रोड्यूस हुए. तो F1 जनरेशन फिनोटाइप क्या हो गया? राउंड येलो. तो इसमें ये सब कैसे होंगे सीड्स? राउंड येलो. सो F1 जनरेशन में जितने भी सीड है वो सब कैसे थे? राउंड और येलो. राउंड और येलो क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रेट ओवर द रिंकल्ड ग्रीन सीड. क्लियर? F1 जनरेशन का क्रॉस कराया गया टू ईच अदर. ओके, सो दैट प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स, प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स. ओके, इन F1 जनरेशन फिनोटाइप. तो जब इसमें क्रॉस कराया गया तो ये फैक्टर्स प्रोड्यूस हुए, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. क्लियर दिस में? सो जब इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो जब फ्यूजन हुआ ये फैक्टर्स का तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस हुए कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई. तो इस टाइप से गैमेट प्रोड्यूस हुए. ओके, देखो आर फ्यूज विथ capital Y, RY is produced. R fused with small y, RY is produced. R fused with capital Y, RY is produced. R fused with small y, RY is produced. Same like here. Okay. So fusion of gametes. So अब इन gametes का fusion हुआ. ये gametes का क्या होगा? Fusion. Clear? So gametes from one hybrid. तो ये gametes from one hybrid and gametes from other hybrid. तो ये capital R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल y. ये वन हाइब्रिड. अब ये अदर हाइब्रिड को आपने इधर राइट किया, गैमेट्स फ्रॉम अदर हाइब्रिड. ओके, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल y. क्लियर दिस वन? अब इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो ये कैपिटल R Y को जब ये कैपिटल R Y से क्रॉस कराया तो कैपिटल R एंड वाई. तो ये कैसे हो गए? राउंड येलो सीड्स. क्लियर? ये गैमेट का इस गैमेट से क्रॉस कराया तो राउंड येलो सीड प्रोड्यूस हुआ. इस गैमेट का इससे क्रॉस कराया तो राउंड येलो सीड, क्योंकि इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई. ओके, फिर ये स्मॉल आर वाई का कैपिटल आर वाई से क्रॉस कराया तो राउंड येलो सीड्स. क्लियर? तो क्योंकि इसमें कैपिटल आर और वाई है तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या है? डोमिनेंट ट्रेड है, इसलिए सभी कैसे है? राउंड येलो सीड. अब सेकेंड जो है
कैपिटल आर वाई का इससे कराया क्रॉस, तो ये प्रोड्यूस हुआ राउंड येलो सीड। अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई जब इनका क्रॉस कराया तो कैसे प्रोड्यूस हुआ, ग्रीन सीड प्रोड्यूस हुआ। ओके, कैसा प्रोड्यूस हुआ, राउंड और ग्रीन सीड, क्योंकि इसमें स्मॉल आर नहीं है दोनों में, ये दोनों एक ही जैसे ट्रेड है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, और कैपिटल आर है तो ये राउंड होगा और स्मॉल वाई है मतलब ये ग्रीन होगा, तो ये सीड्स कैसा हो गया, राउंड ग्रीन। क्लियर। अब ये कैपिटल आर वाई का स्मॉल आर वाई से क्रॉस कराया तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई मतलब राउंड येलो। अब ये स्मॉल आर वाई का कैपिटल आर वाई से क्रॉस कराया तो ये राउंड तो होगा क्योंकि इसमें कैपिटल आर है, तो राउंड है पर दोनों ही स्मॉल वाई है इसलिए कैसा होगा, ग्रीन होगा, तो राउंड ग्रीन सीड्स। क्लियर दिस वन। अब स्मॉल आर और कैपिटल वाई का कैपिटल आर वाई से किया तो राउंड येलो सीड्स। अब स्मॉल आर वाई कैपिटल आर वाई से किया तो राउंड येलो सीड्स। स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर वाई, ओके, दोनों ही आर स्मॉल आर है और दोनों कैपिटल वाई है, तो सीड्स कैसा होगा, रिंकल होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रेड जब प्रेजेंट होंगे, रेसेसिव ट्रेड जब दोनों प्रेजेंट रहते तो ही सीड्स कैसा रहता है, रिंकल होगा। ओके, रेसेसिव ट्रेड है ये डबल आर तो रिंकल हो गया, और कैपिटल वाई है दोनों इसलिए ये कैसा है, येलो। क्लियर दिस वन। सो रिंकल बिकॉज ऑफ दैट डबल स्मॉल आर एंड येलो बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल वाई। क्लियर दिस वन। नाउ स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब इनका जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ कि रिंकल्ड येलो सीड, डबल स्मॉल आर मीन्स रिंकल और कैपिटल वाई है एक तो मतलब येलो सीड्स। क्लियर दिस वन, बिकॉज येलो इज डोमिनेंट ट्रेड। नाउ नेक्स्ट स्मॉल आर वाई एंड कैपिटल आर, जब इनका क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई ये मतलब येलो होगा। ओके, अब स्मॉल आर वाई का कैपिटल आर और स्मॉल वाई से क्रॉस कराया तो आर है मतलब ये राउंड होगा, स्मॉल वाई है दोनों मतलब ये कैसे होंगे, ग्रीन होगा, तो ये कैसा होगा, राउंड ग्रीन। क्लियर। अब ये स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर वाई इनका जब क्रॉस कराया, स्मॉल आर वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो इनका जब क्रॉस कराया तो डबल आर की वजह से, डबल स्मॉल आर की वजह से रिंकल हो गया सीट, और कैपिटल वाई एक ट्रेड प्रेजेंट है डोमिनेंट ट्रेड तो ये येलो हो गया, तो रिंकल्ड येलो सीट। अब स्मॉल आर वाई एंड स्मॉल आर वाई दोनों का जब क्रॉस कराया, दोनों ही रेसेसिव ट्रेड है स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, तो सीड्स कैसा होगा, रिंकल बिकॉज ऑफ दैट रेसेसिव ट्रेड डबल आर एंड स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन कलर। क्लियर दिस वन। सो ये कैसा होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो रेशो क्या हो गया, F2 रेशो कैसा होगा, ये F2 जनरेशन में रेशो क्या होगा, राउंड येलो सीड कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने हो गए राउंड येलो सीड्स, 9 हो गए। अब राउंड ग्रीन सीड्स कितने, ये भी राउंड है क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है इसमें, तो ये राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है। ओके, और ये भी राउंड ग्रीन है, मतलब 1 2 3, तो ये राउंड ग्रीन सीड कितने हो गए, 3। अब रिंकल्ड येलो, अब आप देखो रिंकल येलो कितने, स्मॉल आर है, ओके, मतलब ये रिंकल होगा, तो रिंकल येलो 1 2 3, तो रिंकल येलो सीड्स भी कितने हैं, 3 है। अब रिंकल ग्रीन सीड्स ओनली 1 इज प्रेजेंट, बिकॉज मीन्स जो सेकेंड रेसेसिव ट्रेड है उसके लिए बोथ फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों ही फैक्टर होना रिस्पॉन्सिबल, स्मॉल डबल आर एंड स्मॉल डबल वाई, तो इसमें स्मॉल डबल आर भी स्मॉल डबल वाई भी, इसलिए कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन सीड, तो इसका रेशियो क्या, ओनली 1। क्लियर दिस वन। So this result is the same as that obtained by the Mendel through experiments. So means that 9:3:3:1. Clear this one? Mendel was the first scientist to make a systematic study of heredity. So he is known as the father of genetics.